Friends, hello to everyone. So, today we are going to continue the remaining part of the poem Macavity the Mystery Cat by T.S. Eliot. In our last video, we read about the two stanzas. First, we read about the introduction of the poet, isn't T.S. Eliot? Then, I introduced you to the mystery cat. What the mystery cat means. It is about a cat whose name is Macavity, and this cat is a villainous kind of cat, a wicked cat. And this poem also describes that how this cat Macavity manages to commit all types of crimes, isn't, and always escapes from being caught, isn't, यानी कि वो क्राइम कमिट करते हैं और कभी भी पकड़ में नहीं आता है. This poem is actually light in tone and humorous in nature. So let us have a look over first two stanzas which we read last time. So in the first stanza we read that Macavity the mystery cat is also called as the hidden paw, isn't the second name of it, and it is the master criminal because it defies the law, means does not obey the law. ही इज़ ऑल्सो द बेफलमेंट, यानी स्कॉटलैंड यार्ड, यानी जो पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड, उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वॉट हैपन्स वेन एवर दे रीच द सीन ऑफ क्राइम इट डिसअपियर्स फ्रॉम देयर, मीन्स जब भी वो जहाँ पर वो क्राइम कमिट करता है कैट मैकेविटी, और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो वहाँ से वैनिश अवे, गायब हो जाते हैं. Then we read that there is no one like Macavity. He breaks every human law. He had broken every human law. यानी वो ह्यूमन के लॉज को फॉलो नहीं करते. He breaks the law of gravity. Law of gravity means it does not stays on the ground. It disappears after committing the crime. यानी आप उसको कहीं पे भी ज़मीन पे ढूंढ लो वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं. His powers of levitation. Levitation means same thing, appearing in the floating in the air. ठीक है, तो हिज पास ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर. सो दिस थिंग वी रेड लास्ट टाइम. नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्दर of this poem. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. यानी कि जब आप क्राइम करने के बाद उसको बेसमेंट में ढूंढ लो, बेसमेंट मीन्स इट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट, इजंट. यू मे लुक अप इन द एयर, ऊपर हवा में या कहीं पे भी आप उसको ढूंढ लो, यू विल नॉट, बट वंस अगेन आई विल टेल यू का Macavity इज़ नॉट देयर, एंड आप उसको कहीं पे भी नहीं ढूंढ पाओगे. क्लियर. नाउ इन आवर नेक्स्ट स्टैंजा वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फीचर्स. ओके, in this stanza the poet introduced him as a ginger cat. Ginger cat, why it is called as ginger cat? Because you would have seen the color of the cat is of ginger color. ठीक है, so it is called as ginger cat. और दूसरा, he is very tall and thin. Tall and thin means the physique. Okay, the physique of the cat is of ginger type. Okay, so here you could see ginger cat. He is very tall and thin. तो the color of the cat is of ginger color, और height में लंबा and thin. You could see the picture in your on the left side of the poem. Okay, you can see the cat having a hat on his head, isn't? So you would know him if you saw him, for his eyes are sunken him. मीन्स वैन एवर यू फाइंड हिम, अगर आप उसको पहचानने की कोशिश करो तो उसको पहचान कैसे पहचानोगे? हिज आइज आर संकन इन. संकन मीन्स गहरी, डीप. ओके, तो इट्स आइज आर डीप, अंदर तक संक्ट है. हिज ब्रो इज डीपली लाइंड. ब्रो मीन्स आप देख सकते हैं हमारी जो बोहे होती है उनको ब्रो कहते हैं, तो वो डीपली लाइंड है. बिकॉज वेन एवर, जब आपने देखा होगा जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे आईब्रोज या तो ऊपर तक नहीं हुई होती है. इज इट द सेम काइंड ऑफ, यू कुड सी इन द पिक्चर ऑल्सो देयर इन द पोएम ऑन द लेफ्ट साइड कि किस तरह से उसकी आईब्रोज ऊपर है. इट मीन्स इट इज़ थिंकिंग समथिंग. तो हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, बट इट इज़ थिंकिंग समथिंग. हेड इज हाईली डोम्ड. डोम्ड मीन्स राउंड इन शेप लाइक दिस, इज इट. तो उसका जो फोरहेड है
फोरहेड के ऊपर का पोर्शन ये इस तरह से डोम्ड है, गोलाकार। हिज कोट इज़ डस्टी, हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, मतलब उसने जो कोट पहन रखा है इट इज़ डर्टी। क्लियर? वाई इट इज़ डर्टी? बिकॉज इट नेवर क्लीन्स इट। हिज कोट इज़ डस्टी एज ही डज नॉट कीप हिमसेल्फ क्लीन, वो कभी भी उसको साफ नहीं करता है। तो निगलेक्ट का मतलब मीन्स टू अवॉइड फ्रॉम क्लीनिंग द कोट। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, ओके। तो विस्कर्स मीन्स यू कुड हैव सीन द हेयर नियर द नोज ऑफ अ कैट, दिस इज कॉल्ड एज विस्कर्स। तो वो अनकॉम्ड यानी उलझे हुए हैं, साफ किए हुए नहीं है। यू वुड हैव सीन मोस्ट ऑफ टाइम द कैट with their paws clean their whiskers, isn't? So it is not being done that thing. So his whiskers are uncombed. He sways, sways means to move, ठीक है, moving here and there. He sways his head from side to side with movements like a snake, means his whiskers are uncombed and he keeps swaying, means he keeps moving his head from one side to the other, and that are similar to the movements of a snake. Like a snake moves, same kind of movement is done by its head. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. It means when someone would see that he is half asleep, half asleep यानी आंखें ऐसे बंद कर रखी है जैसे वो नींद में है, ठीक है। इन रियलिटी ही इज़ अवेक, लेकिन सच में अगर हम देखें रियल में वो नींद में नहीं होते, होता है इन अ कंप्लीट सेंस, यानी वो गहरी नींद में नहीं है, उसको पूरी सेंस है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो ही इज़ वाइड अवेक, वाइड अवेक मीन्स जगे रहना। तो वो एक्चुअली सोए हुआ नहीं है, आंखें भली उसकी बंद है, हमको ऐसे लग रहा है कि ही इज़ स्लीपिंग, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली अस्लीप। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आंसर। Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is a finned in feline shape. Finned in a feline shape means feline is a category of cats, ठीक है। और फिंड मीन्स डेमन, डेमन मीन्स जिसको हम हिंदी में राक्षस कह सकते हैं, ठीक है, एविल स्पिरिट। तो ही इज़ अ फिंड इन अ फेलाइन शेप, यानी वो कैट जो है एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेमन, कैट के रूप में एक राक्षस कह सकते हैं हम उसको। और फेलाइन इज़ अ कैटेगरी ऑफ कैट्स, लाइक कैनाइन इज़ अ कैटेगरी ऑफ डॉग्स, तो सेम थिंग इज़ फेनाइल इज़ अ कैटेगरी ऑफ used for the category of cats. So he is a monster of depravity. A monster of depravity means he is morally corrupt, ठीक है। morally corrupt यानी देखा जाए तो उसके लिए corruption ही is everything for it, crime and corruption. And monster, you all know what a monster is. I don't have to explain you, है ना, राक्षस को या ऐसे हम उनको monster कहते हैं। You may meet him in a by street. ओके, सो यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट मीन्स चौराहे पर या सड़कों पर हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, इन अ प्राइवेट स्ट्रीट। और यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तो स्क्वायर मीन्स मॉल कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप यू कुड फाइंड द कैट, Macavity द कैट, बट आफ्टर हिज क्राइम इज डिस्कवर्ड देन Macavity इज़ नॉट देयर, यानी लेकिन जब उसने कोई क्राइम किया, ठीक है, आफ्टर हिज क्राइम इज डिस्कवर्ड ही वैनिशेस अवे एंड कैन नॉट बी फाउंड, यानी जनरली आप उसको किसी स्ट्रीट पे देख सकते हो या स्क्वायर पे देख सकते हो, बट वैन एवर इट कमिट्स क्राइम देन इट इज़ नॉट सीन बाय एनी वन, यानी इस तरह से गायब हो जाता है जो जैसे कि वो वहाँ पर रहता ही नहीं है। ओके, सो Macavity इज़ एक्चुअली आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, मतलब कि लोग भले उसकी रिस्पेक्ट करते हो बट इंटरनली ही इज़ वेरी चीट पर्सन, लोगों को चीट करना, करप्ट करना, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ कैट इट इज़। सो हाउ एवर ही कमिट्स एवरी क्राइम, क्लियर, तो ही वैनिशेस अवे क्विकली एंड इज़ नेवर फाउंड देयर, यानी कोई भी क्राइम करता है और वहाँ से इस तरह से गायब हो जाता है कि जैसे वो रियल में है ही नहीं। That's why the name is given to this cat is the mystery cat. It is said to be mystery which cannot be solved, जो इसे कभी कोई सुलझा नहीं पाया,
इस तरह की मिस्ट्री ये मैकावेटी कैट है. ओके, सो आई हैव गिवन explanation of stanzas in this video, so better do it. Thank you.